प्रेम धन करुणा प्रचुर हिना प्रभु को था गिला सारंग ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज एक काल को था गिला गोरा नटराज पाषाण कोटि भो माथा अनाल पाशिबो गोरांगा गुणेरा निधि को था गिले पाबो से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल इस भजन का अनुवाद है। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्री सारंग ठाकुर कहाँ गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ हैं? सनातन कहाँ हैं? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग प्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूँगा और अग्नि में कूद पड़ूँगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊँगा? गौरांग महाप्रभु
एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। श्रील सारंग ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की हरि बोल। Hare Krishna. Hare Krishna. On behalf of the temple devotees, we like to welcome His Grace Shruti Kirti Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. एक मोबाइल मिला है। अच्छा, जितने मोबाइल हैं, जिनके पास जितने मोबाइल हैं, सब कृपा करके स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड में कर दीजिए, ताकि प्रवचन के बीच में किसी प्रकार की घंटी न बजे। Om Agyanatimirandasya Gyananjana Savakaya Chakshurlanmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Tapitam Jena Bhutale Svaya Rupa Kadamayam Dadati Svapadandikam Panchakopa Tirubhascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. So, very nice to be back here after about 16 months. 16 महीने के बाद यहाँ आने में बहुत अच्छा लग रहा है। And I also somehow seem to come here at this time of the year. I'll explain more about that later. मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं साल के इस समय पे आता हूँ, इसके बारे में और बाद में विवरण दूंगा। So today is a very auspicious day. It's a disappearance day of Sri Saranga Thakur. आज एक बहुत ही शुभ दिवस है, सारंग ठाकुर का तिरुभाव तिथि महोत्सव है। So we'll start by reading a little bit from the Samadhi book, which is known as the Samadhi book. तो समाधि पुस्तक से कुछ पढ़ेंगे उनके बारे में। So an important branch of the Sri Chaitanya tree, Sri Saranga Thakur, Saranga Murari, lived in Mamagachi, Moda Druma Dweep, Navadweep. Just keep reading, so I'll keep reading. Staying under a bakula tree, Saranga Thakur worked hard every day to please his worshipable deity. Single-handedly, he would collect fruits, vegetables, and firewood. He would also beg rice, cook, bathe, dress, and feed his Lord. After a full day of deity service, Saranga would cross the Ganges River to join Mahaprabhu's Harinam Sankirtan in Mayapur. During one visit, Lord Gauranga noticed that Saranga's beloved bakula tree was drying up and almost dead. Lord Chaitanya embraced the tree with his beautiful golden arms. Completely rejuvenated, the tree burst forth with green leaves and fresh, super fragrant flowers. To this day, devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu worship this special Kalpa Vriksha tree of Sri Dham Mayapur. Some devotees collect small pieces of wood which occasionally fall off and make neck beads or worship it. Saranga Thakur vowed to never initiate disciples despite Lord Chaitanya's insistence. One day he relented and decided to initiate the first person he saw. While bathing in the Ganges, he brushed against a floating corpse. Suddenly it sprang to life. Stunned, the man slowly identified himself and bowed down to Saranga Thakur, who just miraculously renewed his life. After giving him mantra diksha, Saranga Thakur became famous as Saranga Murari Thakur because the disciple's previous name was Murari. In Braj Leel, Saranga serves Radha Gopinath as Nandamukhi Shaki. By taking a 45-minute rickshaw ride from downtown Navadweep, you can still see the deities of Saranga Thakur and the Kalpa Vriksha Bakula tree. श्री सारंग ठाकुर श्री चैतन्य रूप तरु की एक महत्वपूर्ण शाखा श्री सारंग ठाकुर अथवा सारंग मुरारी मामगाची मोदद्रुम द्वीप नवद्वीप में निवास करते थे। एक बकुल वृक्ष के नीचे रहते हुए सारंग ठाकुर अपने आराध्य श्री विग्रह को प्रसन्न रखने हेतु प्रतिदिन कठोर परिश्रम करते थे। एकाकी ही वे फल, सब्जियां तथा ईंधन एकत्र करते।
वे भिक्षाटन कर चावल लाते, भोजन पकाते, अपने भगवान को स्नान कराते, वस्त्राभूषित करते तथा भोगार्पण करते। दिन भर श्री विग्रह सेवा करने के उपरांत सारंग गंगा नदी पार कर महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन मंडली में सम्मिलित होने मायापुर जाते। एक बार गौरांग महाप्रभु ने देखा कि सारंग का प्रिय बकुल वृक्ष सूखता जा रहा था और मृत प्राय हो गया था। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सुंदर स्वर्णिम भुजाओं से उस वृक्ष का आलिंगन किया। पूर्णतया जीवंत होकर वह वृक्ष देखते ही देखते हरित पल्लवों तथा नूतन मधुर महमही सुमनों से लद गया। आज तक श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्रीधाम मायापुर में इस अनूप कल्पद्रुम की पूजा करते हैं। कतिपय भक्तजन नीचे गिरे छोटे छोटे काष्ठ के टुकड़ों को एकत्र कर लेते हैं तथा उनसे कंठी माला बनाते हैं अथवा उनकी पूजा करते हैं। सारंग ठाकुर ने प्रण किया था कि वे कभी भी किसी को दीक्षा नहीं देंगे, किंतु चैतन्य महाप्रभु उनसे आग्रह करते रहते थे। एक दिन दयाद्र होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें जो भी पहला व्यक्ति दिखेगा वे उसे दीक्षा दे देंगे। गंगा स्नान करते हुए एक प्रवाहित शव उनका स्पर्श करता हुआ निकल गया। सहसा वह जीवित हो उठा। स्तंभित हुए उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना परिचय दिया तथा सारंग ठाकुर को प्रणाम किया, जिन्होंने अभी अभी चमत्कारिक रूप से उसे पुनर्जीवन प्रदान किया था। उसे मंत्र दीक्षा देने के पश्चात सारंग ठाकुर सारंग मुरारी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उस शिष्य का पूर्व नाम मुरारी था। व्रजलीला में सारंग नंदी मुखी सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा करते हैं। नवद्वीप से रिक्शा में लगभग 45 मिनट यात्रा कर आज भी सारंग ठाकुर के अर्चा विग्रह एवं उस बकुल कल्प वृक्ष के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रील सारंग ठाकुर की Jai. So it's also described in Chaitanya Bhagavat that Lord Chaitanya, he was always telling Saranga Thakur, take disciples, you take disciples. Almost daily he was telling him. चैतन्य भागवत में भी इसका वर्णन है कि लगभग प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश देते थे सारंग ठाकुर को कि अपने शिष्य बनाओ। So he finally relented, so he told Chaitanya Mahaprabhu, tomorrow morning, first person I see, I'll give him Diksha. आखिर उन्होंने मान लिया कि चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रण दिया कि कल सुबह जिससे भी मैं पहले मिलूंगा उसको मैं दीक्षा प्रदान करूंगा। So every morning, first thing he would do, he would bathe in the Ganga. So the first person he saw was this little boy floating on banana trunk. तो पहले दिन हर रोज सुबह वो गंगा स्नान करते थे और उसके अगले दिन जब वो स्नान कर रहे थे तो पहला व्यक्ति जिसको उन्होंने देखा वो एक बालक था जिसका शव एक केले के टहनी पर ऐसे वहां पे तैर रहा था। So that was the first person, was a dead body. तो पहला व्यक्ति जो है एक शव था। So and because he was a young boy, they didn't cremate. Young children, they don't cremate. They would put on the banana, the stalk of the banana tree, and they would float down the Ganga. So this was Murari. तो क्योंकि वो छोटा बालक था, उस समय की प्रथा ये थी कि बच्चों का जो है दाह संस्कार नहीं किया जाता था, उनको केले के टहनी पर लिटा के ऐसे बहा दिया जाता था, तो वो था मुरारी। So he bumped into Saranga Thakur. तो वो सारंग मुरारी के ऊपर लग गया उसका शरीर। So Lord Chaitanya, he was also there. तो चैतन्य महाप्रभु भी वहां स्वयं उपस्थित थे। So from behind Chaitanya Mahaprabhu, he said, you chant Hare Krishna in his ear. तो पीछे से चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि तुम उसके कानों में हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। So of course he followed Chaitanya Mahaprabhu's instruction. He chanted into his ear and he came to life. तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन किया, उसके कानों में उन्होंने हरि नाम का उच्चारण किया और वो पुनर्जीवित उठा। So it said he had died. He was bitten by a python. तो एक अजगर से क्योंकि एक सांप द्वारा उसको ढसा गया था, इस वजह से वो मरा था वो बालक। So he was bitten by a snake the day he was supposed to take Brahman initiation. तो ब्राह्मण दीक्षा जिस दिन उसको प्राप्त होना था उस दिन उसको सांप ने डसा था। So in that way he died. So he got his second birth by Saranga Thakur. तो इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई और उनको असली में दूसरा जन्म प्राप्त हुआ सारंग ठाकुर द्वारा। So then
his parents, they found out, of course, your son Murari, he's alive. तो उसके माता पिता को ये पता चल गया कि उनका बेटा मुरारी जो है अभी जीवित है। So hearing their son was alive, of course they wanted him to come home. They wanted their son. He was just a young boy. They wanted him home again. तो ये सुनते हुए वो चाहते थे कि उनका छोटा बालक उनके घर पे वापस आए। So of course he was very intelligent young boy. He said, I'm forever indebted, he said, to my spiritual master. He's brought me back to life, so I'm going to serve him the rest of my life. तो वो बुद्धिमान बालक था, उसने बताया कि मैं आजीवनांत जो है ऋणबद्ध रहूंगा मेरे गुरु के प्रति, इसलिए मैं आगे उन्हीं के साथ रहूंगा और उन्हीं की सेवा करूंगा। So this is actually there for all of us in spiritual life, this principle. तो ये तत्व हम सबके लिए लागू है आध्यात्मिक जीवन में। Your first birth you take by way of your mother. तो पहला जन्म जो है माता के द्वारा प्राप्त होता है। But most important birth you take by your spiritual master. That's your birthday. तो सबसे महत्वपूर्ण जन्म जो है गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, वो असली जन्म दिवस है। So then by that we become eternally indebted to our spiritual master. तो उससे हम शाश्वता गुरु के ऋणबद्ध हो जाते हैं। To me this day is also most important day. I remember the day I was initiated by Srila Prabhupada. तो मुझे वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब श्रील प्रभुपाद द्वारा मैं दीक्षित किया गया। So this is our real birthday. ये हमारा असली जन्म दिवस है। So it's also said by some in Chaitanya Bhagavat that Saranga Thakur, he was Prahlad Maharaj. तो चैतन्य भागवत में अन्य स्थान में वर्णित भी है कि सारंग ठाकुर प्रहलाद महाराज थे। But then others they dispute this information. तो कई अन्य लोग जो है इस सूचना को तर्क से नहीं मानते। Yeah, so these controversies are there in spiritual life. तो इस प्रकार के समस्याएं आध्यात्मिक जीवन में भी होती हैं। But we can understand just from this little information we have is very special, not ordinary person. तो ये जितनी भी सूचना हमें प्राप्त है उसी से हमें पता चल रहा है कि ये वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। That's 500 rupees donation. 500 रुपया जमा करना है, जिसका भी मोबाइल अभी बजा तुरंत। Srila Prabhupada, at different times, some of his disciples, they would ask him who you were in spirit, who you are in the spiritual world. अलग अलग समय पर श्रील प्रभुपाद के शिष्य उनसे प्रश्न करते थे कि आप आध्यात्मिक जगत में कौन थे, आप कौन हैं। So once one of my god brothers, Pradyumna, he was Prabhupada's Sanskrit editor. तो श्रील प्रभुपाद की संस्कृत संपादक थे प्रद्युम्न प्रभु, प्रभु जी के गुरु भाई। Yeah, he was Prabhupada's Sanskrit editor for all the time Prabhupada was here. जब भी जितने भी समय प्रभुपाद थे उस सारे समय उनके संस्कृत संपादक थे प्रद्युम्न प्रभु। So he also asked Prabhupada once, Prabhupada, this is a very difficult question to ask Srila Prabhupada, who you are, Srila Prabhupada. तो उन्होंने भी ये प्रश्न किया श्रील प्रभुपाद से। बहुत कठिन प्रश्न है श्रील प्रभुपाद से पूछने के लिए कि प्रभुपाद आप कौन हैं। Prabhupada's reply was, if I told you, you would faint. तो प्रभुपाद का उत्तर ये था कि मैं उत्तर दूंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। So Srila Prabhupada, he would never disclose, he would never tell this information. तो श्रील प्रभुपाद कभी इसका खुलासा नहीं करते थे, ये सूचना किसी को नहीं देते थे। Once one of my god brothers, he had come to India early, 1969, 1970. तो प्रभु जी के गुरु भाई उस समय 1969-70 के समय भारत में आए थे। So because there were no ISKCON temples, he went and took shelter at one of the Gaudiya Math temples. तो क्योंकि तब कोई इस्कॉन मंदिर नहीं थे तो गौड़ीय मठ के एक मंदिर के आश्रय में गए थे वो। In this way, of course, he began hearing so many things from Srila Prabhupada's god brothers. तो इस प्रकार कई चीजें वो सुनना शुरू किया उन्होंने श्रील प्रभुपाद के गुरु भाइयों से। Actually, he went away for some time. तो असली में वो कुछ समय के लिए अलग हो गए थे। But then I was with Prabhupada in 1973 when again he came back. तो 1973 में जब मैं श्रील प्रभुपाद के साथ था तब वो वापस आए थे श्रील प्रभुपाद से मिलने। He also did
much of the translation work for the Upadeshamrita. उपदेशामृत का बहुत अधिक अनुवाद का कार्य भी उन्होंने किया. So he began discussing also with Srila Prabhupada at his desk in Mayapur. तो श्रील प्रभुपाद के मेज के समीप मायापुर में उन्होंने भी ये चर्चा करना शुरू किया. Because he was saying, at this temple, Srila Prabhupada, they're saying you were this person, you were doing this. तो ये बोलने लगे कि लोग ये बोलते हैं कि आप ये हैं, आपका स्वरूप ये है, इस प्रकार वो बोलना शुरू किया उन्होंने. Srila Prabhupada said, we don't discuss these things. तो श्रील प्रभुपाद ने बताया हम ऐसी चीजें चर्चा नहीं करते. Srila Prabhupada was, he was very aware of the nature of his disciples. तो अपने शिष्यों की प्रकृति के बारे में श्रील प्रभुपाद अवगत है पूर्णतया. Nature of his nonsense disciples, his rascals. अपने बेकार शिष्यों के, पाखंडी शिष्यों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में प्रभुपाद बिल्कुल जानते थे. This morning someone said to me, please forgive me if I've done anything nonsense. तो आज किसी ने प्रभु जी को बताया आज सुबह कि मैंने कुछ गलत कार्य किया तो कृपया मुझे माफ कर दें. So I said, everything you do is nonsense. तो प्रभु जी ने बताया तुम जो भी कर रहे हो गलती है, बेकार ही है. So that also is in disciplic succession. तो वो भी एक प्रकार से गुरु परंपरा में है. It's coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु से आ रहा है. He says, better you always think yourself a nonsense, a fool. तो महाप्रभु बताते हैं कि हमेशा बेहतर है कि तुम अपने आप को मूर्ख मानो, बेकार मानो. So Srila Prabhupada, he would also say that sometimes to his disciples. तो श्रील प्रभुपाद भी अक्सर ये बताते थे अपने शिष्यों को. He would say, you're just nonsense, fool. तो हमेशा बोलते थे तुम बेकार हो, मूर्ख हो. And then he would say, better you think like that. और प्रभुपाद बोलते थे बेहतर है कि तुम ऐसे ही सोचो. One shouldn't become offended if a superior says you're nonsense. तो अगर हमें बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमारे कोई उच्च पदाधिकारी हमें बोलें कि तुम बेकार हो. One has to think, how can I become better devotee? तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इससे बेहतर भक्त कैसे बन सकता हूँ. Not that we become offended by such words. ऐसा नहीं कि हम इसको बुरा मान लें और उनके शब्दों से. So, the first thing I said this morning was, I always seem to be here at Delhi Temple at this time of year. तो पहली बात जो आज मैंने हम बताई थी वो ये है कि हमेशा मैं दिल्ली के मंदिर में इस समय आता हूँ. Do you know what time of year that is? आप क्या जानते हैं कि इस साल का कौन सा समय है? After Kartik. The beginning of marathon, book marathon. तो मैराथन के प्रारंभ में आते हैं, बुक मैराथन का प्रारंभ. And I think it's proper because here in this temple in India there's no place where more of Srila Prabhupada books are distributed than here at this temple. और ये उचित है क्योंकि भारत भर में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर इससे ज्यादा पुस्तक वितरित हो. ये सबसे ज्यादा पुस्तक यहीं पे वितरित होता है. Yeah. So sometimes when Srila Prabhupada, he was very much, he was happy. Prabhupada would become very transcendently happy when he would hear the book scores. श्रील प्रभुपाद को दिव्य आनंद होता था जब संकीर्तन का स्कोर उन्हें सुनाई पड़ता था, जो सुनाते थे उनको. This also was how this process was established of reading to the deities what books were distributed. तो ये विधि इसका भी स्थापना की गई कि पुस्तकों का वितरण का जो स्कोर है रोज पढ़ा जाता था. You know, the very beginning of this process was back in 1972 in Los Angeles. तो लॉस एंजलिस में 1972 में सबसे पहले ये विधि प्रारंभ हुई थी. It was at that time Rameshwar Prabhu, he would come to Prabhupada's quarters in the evening. तो प्रभुपाद के कक्ष में हर शाम को रामेश्वर प्रभु आते थे. Because at this time, this miracle of book distribution, it just happened by Prabhupada's will, by his desire. प्रभुपाद की इच्छा से, प्रभुपाद के कृपा से उस समय और हमेशा पुस्तक वितरण का ये चमत्कार हो जाता था. हरे जय श्री श्री राधा पार्थसारथी की जय.
And by Prabhupada's desire, his disciples, of course, they became so enthused to distribute his books. प्रभुपाद के इच्छा से उनके शिष्य पुस्तक वितरण में इतने उत्साहित हो उठे. And you have to understand, 1972, there weren't very many books. तो आपको ये समझना जरूरी है कि 1972 में उतने ग्रंथ नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे. And Srila Prabhupada never made any distinction about what books should be distributed. और श्रील प्रभुपाद ने कभी इस प्रकार की कोई अलग विवेचना नहीं की कि कौन से पुस्तक का वितरण हो और ना हो. Even once they asked, because one of the books at that time they had Nectar of Devotion. तो उस समय उपदेशामृत था. A book called Teachings of Lord Chaitanya. श्री भगवान चैतन्य की शिक्षाएं. That was like the Chaitanya Charitamrita in condensed form. और संक्षिप्त रूप में चैतन्य चरितामृत था वो. And both of these books, the philosophy was very, very, very difficult to understand. तो इन दोनों ग्रंथों में सिद्धांत और दर्शन जो था बहुत जटिल था समझना. And the Krishna book was there. और कृष्ण पुस्तक भी था. So even once devotee said, Prabhupada, maybe we should not distribute Nectar of Devotion. तो कभी भक्तों ने बताया कि श्रील प्रभुपाद शायद हमें भक्ति रसामृत सिंधु का जो है वितरण करना नहीं चाहिए. Because it's going to karmis. क्योंकि कर्मी लोगों के पास पहुंच रहा है. What could they understand? वो क्या समझ सकते हैं? Prabhupada said, no, distribute any book. He would say, any book, distribute these books. प्रभुपाद ने बताया नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पुस्तक कुछ भी वितरण करो. So some of you probably heard this story, but it's very appropriate at this time. तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये कथा उचित है इस समय. To understand how important Srila Prabhupada's books are. ये समझने के लिए कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ कितने महत्वपूर्ण हैं. And how by just presenting a book to someone will change their life. और किस प्रकार किसी को पुस्तक वितरण करने से उसका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं. Because I was with Srila Prabhupada a long time, over 2 years. तो मैं श्रील प्रभुपाद के साथ क्योंकि बहुत समय था, लगभग 2 साल. So in that time, the person who I saw read Srila Prabhupada's books the most was Srila Prabhupada. तो उस समय मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़ता था वो और कोई नहीं था, स्वयं श्रील प्रभुपाद थे. Of course, we were all attending morning and evening classes, Srimad Bhagavatam class, Bhagavad Gita class in the evening. हम सब दिन के दोनों समय जो है कक्षा में जाके बैठते थे. सुबह भागवतम कक्षा और शाम को भगवद गीता कक्षा. So at that time, in most temples, that was considered to be our reading time. तो सभी मंदिरों में उस समय माना जाता था कि आपका अध्ययन का समय वो होता था. Because the rest of the time you were busy doing your devotional service. क्योंकि बाकी समय आप जो है भक्ति के अन्य विधि विधानों का पालन करते थे. But Srila Prabhupada, almost every day, at some time of the day, usually in the afternoon, he would be reading his books. लेकिन श्रील प्रभुपाद जो है हर दिन कोई न कोई समय लगभग दोपहर को अपने ग्रंथों को पढ़ते थे. So while I was with him, so many times I would walk in his room and Prabhupada would be sitting behind his desk and he had his reading glasses. Prabhupada wore glasses for his reading, no other time. तो प्रभुपाद चश्मे पहनते थे पढ़ने के लिए, अन्य समय तो चश्मा नहीं पहनते थे. और कभी कभी मैं उनके रूम में प्रवेश करता था, कमरे में, तो मैं देखता था कि वो ग्रंथ पढ़ते थे, अपने द्वारा लिखित स्वयं पुस्तक, और चश्मा पहन के पढ़ते थे. So very early in 1972, when I first became his servant, the one afternoon I went into Srila Prabhupada's room. तो 1972 में पहले जब मैं उनका सेवक बना था, तब मैं उनके कमरे में प्रवेश किया मैंने. And Prabhupada was sitting behind his desk and he was reading his Nectar of Devotion. और प्रभुपाद मेज के पीछे बैठे थे और अपने द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु का नेक्टर ऑफ डिवोशन अनुवाद पढ़ रहे थे. So he had a desk just like this desk, and the seat was lower, just cushion on the floor. इसी प्रकार का एक मेज था और जो आसन जो था उससे थोड़ा और नीचे था, कुशन था नीचे.
So when I came into the room, I offered obeisances just in front of him, and I sat up. तो मैं रूम में प्रवेश करने के बाद उनको दंडवत किया मैंने, ठीक उनके सामने, और सामने बैठ गया मैं. And he looked at me तो फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, very intent, because he was reading his book. बिल्कुल तीव्र दृष्टि थी क्योंकि वो ग्रंथ पढ़ रहे थे. He said, "This book is so nice." तो प्रभुपाद ने कहा ये पुस्तक बहुत बढ़िया है. He said, "If you just read this one book, you can be Krishna conscious." तो सिर्फ ये एक ग्रंथ आप पढ़ोगे, ये एक ग्रंथ पढ़ोगे तो आप कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. He said, "Just this book, if you read it, you can become Krishna सिर्फ conscious." ये एक ग्रंथ पढ़ने से तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. He said, "You don't have to read hundreds of books. तुम्हें सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है. It's not required we become a scholar, read so many books." He said, "Just this book, if you read it, you can be Krishna पंडित conscious." बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के, सिर्फ ये एक ग्रंथ पढ़ोगे तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. He said, "Everything is in this book that you need to know." उन्होंने बताया कि इस ग्रंथ में वो सब कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए. He said, "It's so nice." Prabhupada was in ecstasy. He was reading his books. तो ये बिल्कुल बढ़िया है, और प्रभुपाद स्वयं भाव विभोर हो गए थे इन ग्रंथों को पढ़ते हुए. So then he put his head down and he continued to read. तो फिर उन्हें सर नीचा किया और फिर जारी रखा उन्होंने पढ़ना. He didn't have anything else he wanted me to do. He just wanted to tell me, read these books. उनका और कुछ नहीं था जो मुझे करना था, तो उन्हें बस इतना बताना था कि ये ग्रंथ पढ़ना है. So I offered obeisances and I went back to my room. तो फिर मैंने प्रणाम किया और वापस चला गया अपने कमरे में. So then Prabhupada's traveling to all his different temples all over the world. तो विश्व भर में अलग अलग मंदिरों में प्रभुपाद भ्रमण करते थे. So maybe 6 months go by. तो फिर 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे. So one afternoon, I go into his room, I offer obeisances. तो 6 महीने बाद की बात है कि एक दोपहर को मैं उनके कमरे में गया, मैं उनके सामने जाकर दंडवत किया. I sit up. और मैं वापस बैठ गया. He's sitting behind reading his Bhagavad Gita. तो वो बैठे हैं पीछे बैठ के, मैं इसके पीछे बैठ के अपनी द्वारा लिखित भगवद गीता पढ़ रहे हैं. And he looked right at me. तो He looked right at me. सीधे मेरी तरफ देखा उन्होंने, Very serious. बिल्कुल गंभीरता से. He said, "This book is wonderful, this book." तो ये ग्रंथ जो है बिल्कुल बढ़िया है, विस्मयजनक है. He said, "If you just read this book, you can be Krishna conscious." आप सिर्फ ये ग्रंथ पढ़ोगे तो आप कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. He said, "You don't have to read so many books." He said, "Just this book, if you read it, you can become Krishna उन्होंने बताया conscious." कि तुम्हें बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ग्रंथ पढ़ोगे तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. He said, "It's such a nice book." ये इतना बढ़िया ग्रंथ है उन्होंने बताया. He said, "Everything is here." तो उन्होंने बताया सब कुछ इसी में है, He said, "Just read this book." He said. सिर्फ इसको पढ़ो. Same thing he said to me. He said last year, same thing, different book. पिछले Same साल thing. यही बात बताई लेकिन दूसरे ग्रंथ के बारे में. He said, "Just this book, if you read, you can be Krishna conscious." सिर्फ ये ग्रंथ तुम पढ़ोगे तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. Then he put his head down and then he kept reading his तो book. फिर उन्हें सर नीचा किया और फिर जारी रखा उन्होंने पढ़ना. Imagine Srila Prabhupada, he's reading his books. सोचिए एक बार प्रभुपाद स्वयं अपने ग्रंथों को पढ़ते थे. People write books so everyone else will read them. They don't read them anymore. लोग अपना पुस्तक लिखते हैं ताकि बाकी लोग उनको पढ़ें, ऐसा नहीं कि वो बाद में स्वयं अपना पुस्तक पढ़ते हैं. But he was most attracted to reading his books more than anyone else. लेकिन वो स्वयं अपनी पुस्तकों के प्रति सबसे अधिक आकर्षित थे उनको पढ़ने के लिए बाकी लोगों की तुलना में. So then I'm serving 2 years, so many days, months, weeks. Prabhupada's going to all his temples. Everywhere they're distributing thousands and thousands of books. तो 2 साल में प्रभुपाद के साथ था, अलग अलग मंदिरों में जाते थे और जहां भी प्रभुपाद जाते थे सब हजारों लाखों ग्रंथों का वितरण किया जा रहा था. So now we're back in New Dwarka अब Temple, Los Angeles. अब हम वापस आए नई द्वारका मंदिर में लॉस एंजलिस में. So one afternoon I go into Prabhupada's room. तो एक दोपहर को मैं शिला प्रभुपाद के कक्ष में प्रवेश करता हूँ. It's the 3rd time. ये तीसरी बार है. And Prabhupada's reading Krishna book. और प्रभुपाद कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं अभी. I offered obeisances, I sat up. तो मैं प्रणाम किया, वापस बैठ गया. And Prabhupada looked at me. और प्रभुपाद ने मेरी तरफ देखा.
He said, "This Krishna book is so nice." उन्होंने बताया ये कृष्णा बुक बहुत बढ़िया है. He says, "Filled with nectar, this book." इसमें पूरा अमृत भरा है इस ग्रंथ में. He said, "If you read this one book, you can be Krishna उन्होंने conscious." बताया तुम सिर्फ ये ग्रंथ पढ़ोगे तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. He said, "You don't have to read so many books." He said, "Everything is in this book. If you read it, you can be Krishna उन्होंने conscious." बताया कि तुम्हें कई सारे पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो भी चाहिए वो सब इस ग्रंथ में है. इस ग्रंथ को सिर्फ तुम पढ़ो तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. So I'm speechless. I never say anything. I just तो मैं तो बिल्कुल स्तब्ध हो गया. उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाया. Because Prabhupada was in ecstasy and he was very intense in that state. कि प्रभुपाद बिल्कुल तीव्र भाव में थे, भाव विभोर थे. He said, "Just read this book. If you read this book," he said, "and understand, you can be Krishna conscious." उन्होंने बताया सिर्फ ये ग्रंथ पढ़ो, इसको पढ़ो और समझो तो तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. Same thing, he said. You don't have to read hundreds of books. Just this, he said, "It's so nice, this book." वही बात उन्होंने बताई कि हमें तुम्हें सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ग्रंथ बहुत बढ़िया है तो तुम सिर्फ इसको पढ़ो. But he kept looking at me. He didn't put his head down. He just kept looking. लेकिन मेरी तरफ देखते रहे, वो नीचे उन्होंने सर नहीं किया. तब He said, "You don't even have to read the whole book." आपको पूरा ग्रंथ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. He said, "Just one of these stories. You read one of these stories, you can be Krishna इनमें से conscious." कोई एक कथा तुम पढ़ो तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. So nice. इतना बढ़िया है. And he's looking. और देख रहे थे. So I'm sitting because he didn't turn away, so I had to sit in front of him. तो मैं बैठा रहा क्योंकि वो उन्होंने सर पलटा नहीं, इसलिए मैं वहीं पे बैठा रहा. He said, "You don't even have to read the whole story. Just one page." He went like this. "Just one page in this book. If you read it, you can be Krishna उन्होंने conscious." बताया कि तुम्हें पूरी कथा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पन्ना. उन्होंने एक पृष्ठ के ऊपर हाथ ऊपर नीचे किया और बताया कि सिर्फ ये एक पन्ना तुम पढ़ोगे तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. Imagine. सोचिए. And he kept looking. और देखते रहे. He said, "You don't even have to read the whole page. Just one line." तो उन्होंने बताया कि तुम्हें पूरा पेज भी पूरा पन्ना भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन पढ़ो वो भी काफी है. He said, "Just one line in this book, you can be Krishna इस conscious." ग्रंथ में एक लाइन तुम पढ़ोगे इससे तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. He kept looking at me. और मेरी तरफ देखते रहे. So I'm sitting. और मैं वहां बैठा था. He said, "Okay." He said, "You don't even have to read the whole line. Just one word." And he pointed at a word. उन्होंने बताया कि तुम्हें पूरा लाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक शब्द. उन्होंने उसकी तरफ सूचना देते हुए बताया, संकेत देते हुए बताया, एक शब्द पढ़ो उससे भी तुम कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. He said, "This book is so nice. You read just one word, you can become Krishna तो conscious." उन्होंने बताया कि ये ग्रंथ इतना बढ़िया है, तुम इसमें से एक शब्द पढ़ोगे तुम उससे कृष्ण भावना भावित बन सकते हो. He said, "Because Krishna is in every word." क्योंकि कृष्ण एक एक शब्द में उपस्थित हैं स्वयं. So those who love Krishna, Srila Prabhupada, he was in ecstasy reading his books. तो जो लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, श्रील प्रभुपाद स्वयं भाव विभोर थे अपने ग्रंथों को पढ़ते हुए. He was in so much ecstasy, he could have just sat in his room all day and read and chanted. He didn't have to do anything else. वो इतने भाव विभोर थे कि वो चाहते तो अपने कमरे में बैठ के सिर्फ जप करते और अपने ग्रंथों को स्वयं पढ़ते, उनको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी. Well, who is Srila Prabhupada? लेकिन श्रील प्रभुपाद कौन है? He is so compassionate. He wanted everyone in the world to have one of these books. तो वो इतने दयालु हैं, वो चाहते थे कि विश्व भर में हर एक व्यक्ति के पास एक ग्रंथ उपस्थित होने चाहिए. He said if someone just touches one of his books, it will change their lives. तो वो बताते थे कि कोई इन ग्रंथों को स्पर्श भी करता तो उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता था. So he was so compassionate. He said to one of his disciples, Prabhupada was always so happy when his disciples, they would open up a temple, make a new center somewhere in the world. तो वो इतने दयालु थे, कभी हमेशा वो प्रसन्न होते थे. एक बार अपने शिष्यों के साथ थे, उनको बता रहे थे कि प्रभुपाद हमेशा खुश होते थे कि जब भी वे कोई मंदिर या केंद्र नया खोलते थे. So he said, "It gives me so much pleasure when I see that a temple has been opened." मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मुझे जब पता चलता है कि एक नया मंदिर जो है उसका उद्घाटन हुआ है.
He said, I would be very happy if there was a temple in every city of the world. मैं बहुत प्रसन्न होता अगर हर शहर में विश्व के एक मंदिर होता. And he said it will happen because it's the desire of Lord Chaitanya और Mahaprabhu. उन्होंने बताया और ये होगा भी क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, भविष्यवाणी है. But all the temples Srila Prabhupada opened, the main business was distributing his books. जितने भी मंदिरों का उद्घाटन किया गया श्रील प्रभुपाद द्वारा, उन सबका मुख्य कार्य है पुस्तक वितरण. Every day. हर रोज. And at this time of the year, of course, they would increase so much. और साल के इस समय पे ये और बढ़ जाता था. So Rameshwar, he was such enthusiastic about book distribution, he became the manager of BBT. तो रामेश्वर प्रभु उत्साहित थे इतने ग्रंथ वितरण के बारे में कि वो बीबीटी के मैनेजर बन गए थे. So at the end of the marathon, in the US, of course, it's called Christmas Marathon. और मैराथन के अंत में और पश्चिम देशों में इसको क्रिसमस मैराथन बताया जाता है. And it begins this weekend. और ये जो वीक, ये इस सप्ताह के अंत में वो प्रारंभ होता है. So it goes for 1 month. और 1 महीने तक चलता है. So he would give a report at the end of the year how many books were distributed. तो वो साल के अंत में वो एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करते थे कि साल में कितने ग्रंथों का वितरण हुआ. So then Prabhupada would look and say, very, very good. तो प्रभुपाद उनको देखते थे और वो बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छी तरह देखते थे. And then of course he would say, next year you can double it. और बोलते थे कि अगले साल तुम इसको दुगना करो. So we were never satisfied in वो Krishna कभी तृप्त नहीं थे. consciousness. कृष्ण भावनामृत में कभी तृप्त नहीं होना चाहिए. This is our good fortune that Srila Prabhupada was never satisfied. He wanted to see the whole world become Krishna तो ये conscious. हमारा ये परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद कभी स्वयं तृप्त नहीं होते थे. वो संपूर्ण जगत को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहते थे. And because of his desire, this temple is also manifest. All of you have manifest और उनकी इच्छा से ही ये मंदिर भी प्रकट हुआ है. आप सभी भी प्रकट हुए हैं by Srila Prabhupada's desire. श्रील प्रभुपाद की इच्छा से. Jai. श्रील प्रभुपाद के Jai. So I can only ask and give you my very best, my blessings that you increase your book distribution this year. तो बस मेरी अच्छे शुभ कांक्षा और आशीर्वाद आपको हमेशा प्रस्तुत कर सकता हूँ कि इस साल भी आपका पुस्तक वितरण और आगे बढ़े. And I can tell you that if you engage in this way, giving Krishna to others, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप इसमें संलग्न होइए कि बाकी लोगों को कृष्ण प्रदान करिए. you will certainly get the blessings of your Guru Maharaj. तो आपके प्रिय गुरु महाराज की का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा. And you will get even 100 times blessings of Srila Prabhupada. और उसके 100 गुना आशीर्वाद आपको श्रील प्रभुपाद से मिलेगा. And blessings of the whole disciplic succession. और पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद आपको मिलेगा. And his fastest way to become noticed by Krishna. कृष्ण द्वारा पहचाने जाने के लिए गिने जाने के लिए सबसे तेज तरीका ये है. Srila Prabhupada, he would often quote his spiritual master. श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने गुरु का उदाहरण करते थे. He would say, don't try to see Krishna. वो बोलते थे कि कृष्ण को देखने की कोशिश मत करिए. He would say, act in such a way that Krishna, he wants to see you. वो बताते थे कि इस प्रकार कार्य करिए कि कृष्ण स्वयं आपको देखना चाहे. So in this way you get his darshan. और इस प्रकार आप उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो. So he becomes most pleased when we help others become Krishna conscious. तो वो अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब हम दूसरों को कृष्ण भावना भावित बनने का मदद करते हैं. So today is a very good day, a very auspicious day. So today we get special blessings. तो आज एक अच्छा दिवस है, बहुत शुभ दिवस है. हमें बहुत सारी कृपा मिलती है आज. It is also described about Saranga Thakur. He was always somewhere else. He was not in his normal condition. अपनी सामान्य स्थिति में नहीं थे, हमेशा कहीं और थे. इस प्रकार सारंग ठाकुर के बारे में भी बताया गया अन्यत्र. So sometimes he would just sit in the Ganga 2 days, 3 days. He would never move. He would just sit there in the Ganga. तो कभी कभी गंगा के अंदर ऐसे बैठते थे 2 दिन, हिलते डुलते नहीं थे, बिल्कुल कुछ नहीं करते थे. But his body remained
perfect. Nothing happened to his body. Even he would sit for days and days. तो उनका शरीर तो बिल्कुल सटीक था, उसको कुछ नहीं होता था, और कई दिन वहां बैठते थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था. Said he manifested consciousness of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु की चेतना को उन्होंने स्वयं प्रकट किया. Sometimes he would, in the forest, he would jump on top of tigers. तो कभी-कभी जंगल में रहते थे तो बाघ या शेर होते थे, उनके ऊपर बैठ जाते थे. And tiger would just by his going on him, the tiger would just go inert. और वो बिल्कुल निश्चेत हो जाता था. Yeah. So he's a very special soul. तो बहुत विशेष आत्मा है वो. So this is Vaishnava. Vaishnava can do anything. तो ये वैष्णव है, वैष्णव कुछ भी कर सकता है. When Prabhupada was asked, is Vaishnavas good? Prabhupada would say, Bhaktivinoda Thakur, he could have made the whole world Krishna conscious. Vaishnava has that power. तो उनसे जब पूछा गया तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर ने चाहा तो विश्व भर को कृष्ण भावनाभावित बना सकते थे, वो है वैष्णव. So then the disciples said, Prabhupada, well, if he could do it, then why didn't he make the whole world Krishna तो उनके conscious? शिष्यों ने पूछा कि अगर वो कर सकते थे तो उन्होंने विश्व, संपूर्ण विश्व को क्यों कृष्ण भावनाभावित नहीं बनाया? So why didn't he? तो फिर क्यों? बोले. Yes. He left something for us to do, so we have some service. तो हमारे लिए भी वो कुछ छोड़ गए ताकि हमें भी कुछ सेवा मिले. So this is our process. So ये है we हमारी have something प्रक्रिया. to do. That's the mercy of Bhaktivinoda Thakur. ये है हमारा कार्य, हमें कुछ न कुछ करना पड़ रहा है, ये भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा है. So Srila Prabhupada, he also left something for us to do. श्रील प्रभुपाद भी कुछ चीजें छोड़ के गए हमारे लिए करने को. And he made it very simple, very clear what we can do, how we can help. उन्होंने बिल्कुल सरल और सहज बनाया कि किस प्रकार हम दूसरे लोगों का मदद कर सकते हैं. This ISKCON society, it's a preaching mission. और ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जो है प्रचार का अभियान है. Not sit back in the temple 24 hours a day, chant Hare Krishna, or just go outside the temple, do something. और ऐसा नहीं कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठ के हरे कृष्ण का उच्चारण करते रहे. हमारा कार्य है बाहर जाना, मंदिर के बाहर. You want to bring others into the temple, come sit and chant for 24 ताकि hours. अब बाहर से और लोगों को मंदिर लाए और उनको बिठाकर हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करने के लिए हम उनको प्रेरणा दें. Okay. So any questions, comments? We on Sunday we go till 9:15. If you want, you can go a little further. Sunday we wind up at 9:15 the lecture. So if you could Oh, okay. you could go on a little further. Okay. Okay. We can still see, you can see if there's any questions. Okay. और किसी का कोई प्रश्न है? Thank you, Prabhu. You described very nice pastimes of Srila Prabhupada. So this Sarang Thakur, this boy who died by the snake bite. So in the same way, you compared this boy with us also, that we are also. So Sansar Sarpa, this is a snake of Sansara, which bites everybody, and everybody becomes unconscious or dead. And then Prabhupada, by Prabhupada books, we get life back, second life, second new life. So that's why we should be dedicated whole life. We should dedicate whole life to Srila Prabhupada. Jai. Hare तो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार इस ग्रस्त श्रुतकेतु प्रभु ने बताया कि वो मुरारी बालक था, उसको सांप ने डसा था, वो मृत हो गया था, बाद में उसको सचेत किया गया. इसी प्रकार हमारी भी तुलना उस बालक से की गई कि हम भी चेतना रहित हैं, हमें भी कुछ कृष्ण भावनामृत नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से उन्होंने जो हरिनाम और हरि भक्ति हमें दिया, उससे हम पुनर्जीवित हो उठे, हमारा दूसरा जन्म हो गया. और इसी प्रकार प्रभु जी उसकी तुलना कर रहे हैं, जिस प्रकार की सारंग ठाकुर ने मुरारी को वापस सचेत किया कि वो बेहोश था, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने हम में से सुषुप्त कृष्ण भावनामृत को पुनर्जागृत कराया. श्रील प्रभुपाद की Jai. ये संसार सर्प है. प्रभु जी ने पॉइंट बताया था कि ये संसार सर्प द्वारा हम ढसे गए हैं, और श्रील प्रभुपाद ने हमें कृष्ण भावनामृत से पुनः जगाया और दूसरा जन्म दिया. Prabhu.
Hare Krishna. Prabhuji, very enlightening lecture. Hare. Thank you. Very, very enlightening. You, whenever you give lecture, we come very close to Srila Prabhupada. Thank you. Thank you. Hare Krishna. So, about book distribution. अच्छा, ओके ओके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग इतना किताबें जो है बांट रहे हैं, लेकिन आजकल जो है वो ऐसा वातावरण हो गया है कि लोग कोई भी किताब नहीं पढ़ते। किताबें पढ़ने की आदत ही खत्म हो गई है। लोग देखते हैं वो उसमें मतलब इंटरनेट में या टेलीफोन में वो देखने का ज़्यादा है, जो वो किताबें पढ़ने का। तो ये किताबें बांटने से लोगों को पढ़ने की आदत ही खत्म हो गई है। तो कैसे ये लोग पढ़ेंगे किताबें प्रभुपाद जी की? Hare Krishna. Good question. I'll tell you, once there's so many Sankirtan stories, book distribution stories. I'll tell you one. तो बहुत सारे संकीर्तन कहानियां हैं, उनमें से एक मैं आपको बताऊंगा। Because I've experienced what happened myself. I've told this story many times. क्योंकि मैंने स्वयं इसका अनुभव किया, मैंने ये कथा कई बार बताई है। So I was in Brazil. ब्राजील में था, ब्राजील देश में था 2 years ago. 2 साल पहले। So Brazil is very country, you know, a lot of forest, farms like that. ब्राजील में बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे वन हैं, उस प्रकार का देश है। So I was staying at one ISKCON farm, very beautiful temple there. और इस्कॉन का बहुत सुंदर मंदिर है, एक इस्कॉन फार्म है वहाँ पे मैं ठहरा था। And there was a family of devotees. वहाँ पे एक भक्तों का एक परिवार था। Husband, wife, and 3 children. पति पत्नी और 3 बच्चे। So they had been living there for over a year. 1 साल से भी अधिक वहाँ पे रुके थे। So fairly new devotees. तो बिल्कुल नए भक्त थे, So बहुत अच्छे भक्त थे। I asked him how he got there. तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? So he said, he showed me on his arm he had a tattoo. तो उनके हाथ में, टैटू को क्या बोलते हैं हिंदी में? Tattoo, हिंदी, you उनके know? हाथ में एक टैटू था। You know, tattoo. समझ गए जो भी है। Tattoo, you know? You know a No, tattoo. I didn't know what it was for in Hindi. Ah, yes. So the tattoo is, of course, in Sanskrit letters. So ये जो टैटू जो था वो संस्कृत में लिखा था, संस्कृत अक्षरों में। So we, over the past 10 years, 5 years, everyone's getting tattoos, you know, women, men, boys, girls, grandmothers, everybody. पिछले 5-10 सालों से हर कोई जो है अपने हाथों में या शरीर के अन्य भागों में टैटू बनाता है। लड़के, लड़कियां, बड़े, बूढ़े सब अपने ऊपर जो टैटू जो है बनाते हैं। Devotees, भक्त भी you know, tattoos on their head, tattoos on their अपने chest. सर पे, अपने छाती पे वो टैटू बनाते हैं। So he said he wanted to get a tattoo. तो उन्होंने बताया कि मैं एक टैटू बनाना चाहता था अपने शरीर पर। So he wanted the Sanskrit letters. He just was attracted to the letters. तो संस्कृत अक्षर चाहते थे क्योंकि उन अक्षरों से वो आकर्षित थे। So he went to his bookshelf तो अपने पुस्तकों का जो अलमीरा था उसके पास गए वो, because 20 years before कि 20 साल पहले he had been given a book by a devotee. कि भक्तों द्वारा उनको एक पुस्तक दिया गया था। 20 years before. 20 साल पहले So it was a book. वो एक ग्रंथ था। So people don't throw away books, they put on the shelf. लोग पुस्तक फेंकते नहीं है, वो शेल्फ पे रखते हैं। You know, they throw away newspapers, they throw away magazines, but a book, if you don't even read it, you put it on a shelf because it looks nice. The book looks nice. अखबार और मासिकाएं लोग फेंक देते हैं, लेकिन पुस्तक फेंकते नहीं क्योंकि अच्छे लगते हैं वो शेल्फ के ऊपर। You know, if you see you have a bookshelf, then people think, oh, intelligent person is. यदि आपके पास बुक शेल्फ है, शेल्फ पे अपने बुक So रखा तो many लोग books. सोचते हैं, लोग सोचते हैं हाँ ये बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके पास कितने पुस्तक हैं। So 20 years that book sat on the shelf, never looked at the book. 20 साल वो पुस्तक वहीं का वहीं था, उसकी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने।
But he wanted a tattoo, so he opened the book because he knew it had funny letters in the book. तो उनको टैटू चाहिए था शरीर के ऊपर, तो उन्होंने वो ग्रंथ खोला क्योंकि उनको पता था उनमें कुछ अजीब तरह के अक्षर थे. So he got his tattoo, but then he started reading the book. तो उन्होंने वो टैटू बनाया, लेकिन फिर उसको पढ़ना शुरू किया. He opened it up. उन्होंने बिल्कुल खोला. So then the book took effect 20 years later. तो पुस्तक का प्रभाव 20 साल बाद हुआ. It's a fact. People don't read books. ये तथ्य है कि लोग पुस्तक नहीं पढ़ते. Why do you think Prabhupada kept telling me, if you just read one book, you can be Krishna conscious? आपको क्यों लगता है कि प्रभुपाद मुझे बार-बार बोलते थे कि तुम एक ग्रंथ पढ़ो, तुम उससे कृष्ण भावनाभावित बन सकते हो? He would see me in my room every day. मुझे हर रोज अपने कमरे में देखते थे वो. I was never reading a book. मैं कभी ग्रंथ नहीं पढ़ता था. He was talking to me. He was telling me, just read one book and you can become Krishna conscious. Just read one book. और मुझे बोल रहे थे, मेरी तरफ देख के बोल रहे थे कि तुम एक ग्रंथ पढ़ो, तुम कृष्ण भावनाभावित बन सकते हो. So I was so-called devotee, trying to be devotee. I was Prabhupada's servant. Still I wasn't reading. मैं तथाकथित भक्त था, भक्त बनने की कोशिश कर रहा था, श्रील प्रभुपाद का सेवक था, फिर भी मैं ग्रंथ नहीं पढ़ता था. So every time I would come in the room, he was reading his books. तो हर बार मैं उनके कमरे में आता था, वो पढ़ते थे अपना पुस्तक. What better example? इससे बेहतर उदाहरण कहाँ हो सकता है? So whatever book he was reading, he would say, just read this one book. जो भी पुस्तक वो पढ़ते थे, वो बताते थे कि एक ग्रंथ तुम पढ़ो, सिर्फ एक ग्रंथ. But these books, they're also deities. तो ये ग्रंथ हैं, ये भी जो हैं अर्चा विग्रह हैं. It's Krishna, non-different. कृष्ण से अभिन्न है. So you put a book in someone's house, you're putting a deity in their house. तो किसी के घर पे आप पुस्तक रख रहे हो, तो उनके घर पे अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा कर रहे हो. So gradually it will infect them. क्रमशः उनको ये संक्रामक हो जाएगा, उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा. Even they don't read. तो ये अगर ना भी पढ़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. We were just in Los Angeles. लॉस एंजलिस में. So we visited my wife's grandmother. तो लॉस एंजलिस में थे और हम मेरी पत्नी के मैटरनल और पैटर्नल. In Hindi there's a difference. My wife's father's mother. Okay, उनके दादी के पास गए थे. Very technical you are. प्रभु जी बोल रहे हैं आप बहुत बुद्धू हो. So she wanted a picture of my wife and me, so she could put on her wall. तो वो चाहते थे कि एक चित्र चाहते थे, तस्वीर मेरे और मेरे पत्नी के साथ. So my wife gave her a picture of her and me with Govardhan behind, Govardhan Hill. तो मेरी पत्नी ने ऐसा चित्र दिया जिसमें मैं और वो खड़ी हैं और पीछे पृष्ठभूमि में गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन. So now she has a picture on her wall of Govardhan Hill. तो उनके दीवार पर अब एक चित्र है गोवर्धन की. Krishna is there in her house. तो उनके घर पे कृष्ण आ गए अभी. So it's like that. You put a book, and even nothing happens. The book is in there in the house. It'll take effect. इस प्रकार है, आप एक पुस्तक उनको दे देंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन उसका प्रभाव लगभग क्रमशः हो जाएगा. They've already been benefited. Just by taking it, they've been benefited. वो अभी से उनको लाभ प्राप्त हो गया, सिर्फ वो ग्रंथ लेने से वो लाभ प्राप्त हो गया उनको. If they open it up and start to read, then of course more benefit will उसको be खोल के there. अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको और लाभ प्राप्त होगा. But there's no. Sometimes people buy books in second-hand stores. They'll buy Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. तो कभी-कभी लोग सेकंड हैंड बुक शॉप में जाके भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि खरीदते हैं. प्रभु जी picked up a Gita like that. They made one video. BBT made video, the time bomb. तो प्रभुपाद ने एक बीबीटी ने एक वीडियो बनाया जिसको टाइम बॉम्ब बताया गया. So the timer, you never know when the timer will explode. टाइम बॉम्ब में पता नहीं कब वो उसका विस्फोट होगा. And also, it's good for the person distributing the book, not just person receiving. Everyone benefits. तो ये जो पुस्तक वितरण करता है उसको भी लाभदायी है, न सिर्फ जो पुस्तक ले रहा है, सबको लाभ मिलता है. This was Prabhupada's. Should just distribute the book. He said best preaching work. तो ये है प्रभुपाद का आंदोलन. प्रभुपाद बताता है कि सिर्फ पुस्तक वितरण करो, यही प्रचार है. Just like any kind of anything you do, any salesperson knows,
if you want to, sell 1, 2, 3 things, you have to talk to 100 people. तो हर जो है विक्रेता, हर सेल्समैन ये जानता है कि 1-2-3 चीजें अगर बेचनी है तो उसमें 100 लोगों से मिलना पड़ेगा. So it's always question of numbers. It's so many. If you distribute 100 books, someone will come to the temple. Some of them will come to the temple. तो ये सिर्फ संख्या का प्रश्न नहीं है. सैकड़ों लोगों से मिलेंगे तो कुछ लोग ग्रंथ वितरण करोगे तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग मंदिर में आएंगे. और कोई प्रश्न किसी का? Thank you, Prabhu. Prabhupada once said that I will never die, I will live in my books. Right. So really Prabhupada is speaking through his books. So when Prabhupada was alive, so he had only one mouth that he was speaking. Now he has so many mouths and you are increasing Prabhupada's mouth. Because Prabhupada is speaking through his books. So when you give Prabhupada's book to anybody, you are giving Prabhupada. And Prabhupada starts preaching him. Hari Om. प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद ने बताया कि मैं अपने कुछ पुस्तकों द्वारा जीवित रहूंगा. और प्रभुपाद जब स्वयं उपस्थित थे तो एक मुंह से बोलते थे, लेकिन अब जबकि प्रभुपाद के ग्रंथों का हम वितरण करते हैं तो उनके द्वारा हम प्रभुपाद को ही बांट रहे हैं. और प्रभुपाद अब एक मुंह के बदले हजारों मुख से लोगों से बात करते हैं और अधिक से अधिक लोग भक्त बन रहे हैं. तो एक मुख के बदले, एक प्रभुपाद के बदले अभी हजारों सैकड़ों प्रभुपाद हैं. And this is why we say when I would see Prabhupada reading his books, it was a very curious thing to see because they were his books. तो मैं श्रील प्रभुपाद को देखता था, वो अजीब चीज थी क्योंकि वो स्वयं श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तक था. Oh, on the airplane once, Prabhupada was reading Bhagavad Gita as it is. तो एक बार हवाई जहाज में जब चल रहे थे तो भगवद गीता यथारूप पढ़ रहे थे श्रील प्रभुपाद. So next to him, I'm sitting next to him in Prajumna. I told you Prajumna, Sanskrit editor. We're all three sitting, and Prabhupada's reading his books. We're not reading. Prabhupada's reading. और उनके बिल्कुल बगल में बैठे थे, मैं बैठा था और प्रभुपाद के संस्कृत संपादक प्रद्युम्न प्रभु वो भी बैठे थे. हम दोनों बैठे हैं लेकिन प्रभुपाद खुद अपना पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं. So Prabhupada looked at us. He said, "What author do you know reads his own books?" तो श्रील प्रभुपाद ने हमारी तरफ देखते हुए पूछा कि आप कौन से लेखक को जानते हो जो अपने स्वयं की पुस्तकें पढ़ता है. So he said, "None, no author. Once he finishes a book, he goes on to another book. He never reads his books." तो प्रभुपाद ने कहा कि कोई लेखक नहीं, कोई एक ग्रंथ खत्म करता है तो वो उसको छोड़ देता है और अगला नया ग्रंथ जो है प्रारंभ करता है वो लिखना. He said, "But I'm reading this book, Bhagavad Gita as it is." He said, "Why?" तो लेकिन मैं ये भगवद गीता यथारूप पढ़ रहा हूँ, क्यों? He said, "Because these aren't my words, they're Krishna's words." क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये कृष्ण के शब्द हैं. This is the amazing thing that Srila Prabhupada, he brings us Krishna directly through his words. तो ये है विस्मयजनक चीज कि श्रील प्रभुपाद कृष्ण को स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं अपने ग्रंथों द्वारा. Only pure soul can do that. सिर्फ एक शुद्ध आत्मा ही ये कर सकता है. Once Prabhupada was saying, reporter asked Srila Prabhupada, "So does, God tell you what to do sometimes?" तो रिपोर्टर ने, पत्र संपादक ने एक बार पूछा प्रभुपाद से, क्या भगवान आपको बताते हैं कि क्या करना है? And Prabhupada said, "Yes." तो प्रभुपाद ने बताया हाँ. So this is, if you say this, sometimes they'll put you in crazy house, if you say God talks to you. तो कभी-कभी आप ये बताते हैं तो आपको पागल खाना भेजा जाता है कि जब आप बताते हो कि भगवान मेरे से बात करते हैं. So he said, so the reporter became very excited. He said, "So you're saying that you speak with God?" तो संवाददाता जो है वो जो है बिल्कुल उससे और उनको अच्छा लगा और पूछने लगे, आप भगवान से बात करते हैं? Prabhupada said, "Yes." प्रभुपाद ने दोबारा बताया हाँ. So then it was Rameshwar, again Rameshwar, same person. He was trying to explain to the reporter. तो रामेश्वर प्रभु वहाँ पे उपस्थित थे, वो उस पत्रकार को और समझाने की कोशिश कर रहे थे. He was saying,
is what he means. That's always very dangerous when you try to say what your spiritual master means, because he knows what he means. उन्होंने कहना शुरू किया उनका मतलब है, और प्रभु जी बोल रहे हैं ये बिल्कुल खतरनाक चीज़ है जब आप ये बोलना शुरू करोगे कि गुरु ये बोल रहे हैं उसका मतलब ये है करके, उनको असली में मालूम है उनका मतलब क्या है. So Rameshwar said, what he means is we have Shastra is there, the scriptures are there. So these are the words of Krishna, the words of God. So we can understand by what's in the Shastra, what God wants. तो रामेश्वर प्रभु ने बताया कि उनका मतलब है कि हमारे पास एक ग्रंथ है, पुस्तक है, शास्त्र हैं, इनमें भगवान की वाणी है और इनको समझने से हम भगवान के आदेश को समझ सकते हैं. And Prabhupada said, no, he said Krishna, he can speak to his devotee. तो प्रभुपाद ने बताया नहीं, कृष्ण अपने भक्त से बात कर सकते हैं. So this is what Srila Prabhupada giving. When he gives us his books, it's Krishna telling us what we need to hear. तो श्रील प्रभुपाद ये कर रहे हैं, प्रभुपाद अपने ग्रंथों द्वारा ये दिखा रहे हैं कि कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि अपने भक्तों से. Prabhupada describes it as emotional ecstasies. और इनको अपने भावमय उन्मादन बोला श्रील प्रभुपाद ने. And he talks of devotion of emotion. और उन्होंने बताया कि भावनाओं की भक्ति है. We're not here for dry business. We're not businessmen. हम शुष्क कार्य के लिए नहीं जुड़े, हम कारोबार वाले नहीं हैं. Not about dollar signs. यहाँ पे ऐसे डॉलर का चिन्ह नहीं है. It's about emotion for Krishna, love of Krishna. We're here to develop love of Krishna. ये भावनाओं के बारे में है, विकार के बारे में, कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए हम आए हैं. And if we do that, then we can give love of Krishna to others. यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम दूसरों को भी कृष्ण बांट सकते हैं. That's why they say practice what you preach. तो इसलिए बताया जाता है कि आचार ही प्रचार है. You can't give something you don't have. तो आपके पास जो नहीं है वो दूसरों को आप नहीं दे सकते. If you want to give to others, you want to give Krishna to others. You have to have Krishna. You have to be serving Krishna. You have to develop your love of Krishna. यदि आप दूसरों को कृष्ण देना चाहते हैं तो आपके पास कृष्ण होने चाहिए, आपके पास कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब आप दूसरों को बांट सकते हैं. And Krishna can speak through you. और कृष्ण आपके द्वारा तब बोल सकते हैं. That's the mystical process of Krishna consciousness. तो ये है कृष्ण भावनामृत की विस्मयजनक प्रक्रिया. So Prabhupada said, no, Krishna tells me. तो इसलिए प्रभुपाद ने बताया नहीं, कृष्ण मुझे बताते हैं. Everybody just got quiet. So who is this Prabhupada? तो सब चुप रह गए कि प्रभुपाद कौन है. He said, if I told you, you would faint. तो इसलिए प्रभुपाद ने बताया कि मैं अगर बताता तो तुम बेहोश हो जाओगे. So that someday we want to know who Srila Prabhupada is, huh? तो कोई एक दिन हमें ऐसा मालूम होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद कौन है. So when you know who you are, तो जब आप जान जाएंगे, then you'll understand who spiritual master is. जब आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं, तब आप समझ जाओगे कि आपके आध्यात्मिक गुरु कौन है. Otherwise, we just think we're this body. अन्यथा हम ये समझ बैठते कि हम सिर्फ शरीर हैं. So we have to rise above this तो platform. हमें इससे ऊपर उठना है, इस धरातल से. And that's what all these books are for. और इन ग्रंथ इस सारे इसलिए हैं. And just by reading them, they'll take effect. तो सिर्फ उनके पढ़ने से उनका प्रभाव शुरू हो जाता है. Don't think nothing's happening. It's something's happening. ये मत सोचिए कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो रहा है. Just like when you get bit by a mosquito. जैसे मच्छर द्वारा आप जब काटे जाते हो, You think, nothing's happening. आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है. And 5 days later, you're lying in bed dying. 5 दिन बाद आप मरे पड़े हो, मरने वाले हो बिस्तर पे. A tiny little bite from this tiny little thing. एक छोटे मच्छर से काटे गए हो थोड़ा थोड़ा और उससे आपको इतना बड़ा प्रभाव हो गया. But it's infected you. लेकिन आपके अंदर ये रोग आ गया, संक्रामक. So by the mercy of the pure devotee, this Krishna, he's infecting you. इस प्रकार कृष्ण के शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है. Prabhupada said, no one can go away. कोई नहीं जा सकता. प्रभुपाद बताते You थे. may think you can leave,
But you're only going away short time. Krishna's drag you back. You can't leave. आपको लगता है कि आप कुछ समय के लिए दूर जा रहे हो, लेकिन कृष्ण आपको वापस घसीट के वापस लाते हैं। You can come back voluntarily, otherwise you get dragged back. आप स्वतः आ सकते हैं या घसीटे हुए लाए जा सकते हैं। Don't think once you come to Krishna consciousness, oh, I finished. Crazy people. तो ये मत सोचिए कि कृष्ण मनोमत में आने के बाद और छोड़ने के बाद सारे सब पागल लोग हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं। It's already inside. The infection is inside you. आपके अंदर पहले ही वो पूरा इन्फेक्शन आ गया है। All that prasadam you've eaten, जितना भी आप प्रसाद जो लेते हैं पाते हैं, yes, will take effect. उसका प्रभाव होगा। All the chanting, जितना भी जप करते हैं, coming here in japa time, everybody's chanting. Whole rooms filled with Hare Krishna mantra vibration. तो यहाँ पर जैसे आते हैं जप के समय पर सारे जप कर रहे हैं, सारा कमरा भर पड़ा है हरे कृष्ण मंत्र के ध्वनि से। Best thing is you surrender voluntarily. सबसे बढ़िया यह है कि आप स्वतः अपने आप को समर्पित करो। Otherwise, KGB will come. अन्यथा रहस्य पुलिस जो है, जासूस जो है आएंगे, रशिया के जिसको केजीबी बोलते हैं, लेकिन कुछ और अर्थ होगा इसका। हाँ। Okay. Prabhuji, does KGB stand for Krishna's great bhaktas? Yes, that's right. They'll come and drag you back. तो ये घसीट के लाएंगे हमें कृष्ण के भक्त। Krishna Guru and Bhaktas. कृष्णा गुरु और भक्त, KGB। The three symptoms. Anything else? और कुछ? Hare Krishna. Just like the bakul tree of Sarang Thakur. So it was dried up, and Lord Chaitanya embraced, so it became again green and fresh. In the same way, so many people's life is completely gone, dried up because of sinful activities. And when they receive Prabhupada books and read, so this is just like embrace of Lord Chaitanya, and they become again fresh and new and green. प्रभु बता दें, जिस प्रकार वो बकुल वृक्ष था जो कि बिल्कुल सूखा था, निर्जीव था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आलिंगित होने से वो पुनर्जीवित हो उठा, हरा भरा ताज़ा हो उठा। इसी प्रकार हम भी बिल्कुल सूखे हैं, मरे पड़े हैं। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ जो कि चैतन्य महाप्रभु के आलिंगन के समान हैं, जैसे उसको प्राप्त करते हैं हम भी पुनर्जीवित हो उठते हैं, हमारा भी जीवन ताज़ा हो उठता है, हरा भरा हो जाता है। Srila Prabhupada ki jai. Srila Saranga Thakur ki jai. His Grace Shruta Kirti Prabhu ki